Okay, so this thing we had discussed yesterday. In this one, we had gone through how to relate the angle of incidence and the angle of emergence with the angle of prism to the angle of deviation. So I hope you all had understood this thing. I hope you all had gone through that how this used to happen with the proving, and that angle is very important to be calculated because numericals used to come under that one. Okay, so please be mindful for that. So if you haven't practiced it, then I will request that you please practice it out. If you will not practice, then there will be problem for you all. And I don't want anyone to lose any kind of marks due to the negligence. Okay. So you please do it in a proper way. So now let's understand some more things related to here. So here we are going to see refraction through the prism, and there we will understand the factors on which the refractive angles used to be depending on. And with that one, we will try to understand about the minimum deviation. Okay. तो हम लोग मिनिमम डेविएशन को भी समझेंगे कि मिनिमम डेविएशन क्या होती है और फिर उसके उससे किस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर कंडीशन मिलती है। तो कल हम तुम लोगों को तो ऐसे फिगर हम तो समझा ही चुके थे कि एक प्रिज्म में जब लाइट से क्रॉस करती है देन हाउ इट यूज टू रिफ्रैक्ट। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये हम लोग की इनिशियल इंसिडेंट रे है जो कि एंटर करती है अंदर की तरफ और यहाँ पे रिफ्रैक्ट करती है फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड ओवर हियर दिस यूज्ड टू मूव फॉरवर्ड, ये आगे की तरफ बढ़ती है और आगे की तरफ बढ़ने के बाद ये एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्ट कर जाती है, ये यहाँ पर रिफ्रैक्ट कर जाती है और यहाँ पर एंगल ऑफ इमर्जेंस का फॉर्मेशन होता है विद द इमर्जेंट रे, एंड यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंट का फॉर्म होता है और यहाँ पर होती है हम लोग की एक्चुअल एंगल ऑफ डेविएशन, यहाँ पर एक्चुअल एंगल ऑफ डेविएशन होती है और ये होती है हम लोगों की एंगल ऑफ प्रिज्म। और हम लोगों ने कल इस चीज को प्रूव किया था वेयर द एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमर्जेंस इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द एंगल ऑफ प्रिज्म विद द एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, तो हम लोग अब यहाँ पर एक रिलेशन पुटअप करने वाले हैं। क्या रिलेशन पुटअप करने वाले हैं इसको देखते हैं। तो अगर हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, अगर हम लोग इस फॉर्मूला को थोड़ा सा चेंजेस करते हैं तो हम लोगों को यहाँ पर इसी इसी इक्वेशन में सिंपल सिंपल सा इक्वेशन है एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है, या डेविएटेड एंगल इज इक्वल्स टू, तुम लोग कर सकते हो, द एंगल ऑफ प्रिज्म कैन मूव टू दैट साइड, so angle of incidence plus angle of emergence minus angle of prism. Okay. Now, if a certain situation happens or a particular condition causes where we used to observe that our angle of incidence and our angle of emergence gets equal, या इसी चीज को हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं द डेविएशन विद द मिनिमम डेविएशन। हम लोग यहाँ पे एक टर्म जो समझने वाले हैं मिनिमम डेविएशन, ये वही चीज है। तो वो बताएंगे कि क्या होता है मिनिमम डेविएशन। फिलहाल पहले इस इक्वेशन को बता देते हैं। सो एक ऐसा सिचुएशन सोचो जहां पर कि एंगल ऑफ इंसिडेंस बिगिनिंग एकदम सबसे पहले वाले जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एट द एंड में जो एंगल ऑफ इमर्जेंस है ये दोनों ही इक्वल हो जाते हैं। Then under that condition, we can say it is angle I plus angle I minus angle A. So you can have a sum of this. So 2 angle I minus angle A. So you can say that the angle of deviation is equals to, the angle of deviation equals to 2 angle I with minus angle of prism. And this deviation is called to be as the minimum deviation. It is called to be as the minimum deviation. Now, what does this minimum deviation is or how we can get for this one? Let's understand this thing. Now, see over here that we know this thing that when the light ray is going to travel from air to glass, when the light ray is going to travel from air to glass, it is going to bend. It is going to bend over here. Now, one more thing, when it is going to bend over here, it is going to bend towards the normal. It is going to bend towards the normal because it is going from a rarer medium to denser medium.
And when it is coming out from this end, from the another side, then you will observe that it is coming from a rarer, so denser medium to a rarer medium. So what happens? It goes away from the normal. Now, if we increase the angle of incidence over here, if we will increase the angle of incidence over here, then what we will observe? Now, suppose, for example, if we are increasing the angle of incidence or we are decreasing the angle of incidence, whatever we used to do for this one, then with respect to this, we will find that there will be a change in the angle of deviation. So that is the thing which we are going to represent in this graph. Here you can see a graph is there. And again, this graph is in your practical also. In your practical also, this graph is there, which you need to construct. So angle of incidence with respect to angle of deviation. So when you see that when you are increasing the angle of incidence, you will find that the angle of deviation will decrease. ये याद रखना, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को तुम बढ़ाओगे, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस आगे की तरफ बढ़ती है, तो एंगल ऑफ डेविएशन जो होती है वो घटती है। ठीक है, ये याद रखना। तो जब इसको तुम ग्राफ में प्लॉट करोगे, तो से एज फॉर एग्जांपल पहले कोऑर्डिनेट के लिए तुमको सपोज फॉर एग्जांपल जस्ट चेंज दिस वन। सपोज तुमने पहले कोऑर्डिनेट के लिए बनाना चाहा, सपोज यहाँ पर इस पॉइंट के लिए तुम पहले कोऑर्डिनेट के लिए बनाना चाहा, तो यहाँ पे तुम्हारे पास ये वाली वैल्यू आई। ठीक है, ये वाली वैल्यू आई। अब इस वाले वैल्यू के इसको थोड़ा सा स्ट्रेट कर देते हैं तो वो ज्यादा बेटर फॉर्म से तुम लोगों को दिखाई देगी। Just erase this. So here it will something like this. So ये यहाँ पर इस तरह से आ रही है। तो ये तुम्हारी पहली कोऑर्डिनेट है। तुम अगर इंसिडेंट रे में थोड़ा सा और अगर इनहांस करो, तुम अगर थोड़ा सा और इनहांस करो, then you will find over there that the angle of deviation is going to decrease a quite little. Now, if you will increase a little more, as you can see over here, if you increase it a little bit more, then you will find that the angle of deviation is going to reduce a little more. So what you can say over here, that the angle of incidence is inversely proportional to the angle of deviation. ये बोला जा सकता है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एंगल ऑफ डेविएशन से। तो इसीलिए अगर हम लोग देखते हैं तो ये यहाँ पर बढ़ रही है, तो दूसरी तरफ ये यहाँ पर घट रही है। लेकिन ये भी एक मजेदार बात होती है कि ये जो प्रोसेस है वो एक सर्टेन पॉइंट तक ही होता है, एक सर्टेन पॉइंट तक ही होता है। देन after that if you are increasing the angle of incidence, just a minute, if you increase the angle of incidence, तुम अगर angle of incidence को अगर तुम इसके आगे बढ़ाते हो, then you will observe that the angle of deviation is also increasing over there. As you increase over here, you will find that the angle of deviation is also increasing. The angle of deviation is also increasing over here. So ये चीज तुम लोगों को समझने की जरूरत है। हम लोग जो यहाँ पर जो रिफ्रैक्शन देख रहे हैं, ये एक अजीब सा फेनोमेना क्रिएट करता है। हम लोग जब एक बार एंगल को इंक्रीज करते हैं, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम एक बार इंक्रीज करते हैं, तो हमको दिखता है कि एंगल ऑफ डेविएशन छोटा हो रहा है। एक बार के लिए हमको दिखता है एंगल ऑफ डेविएशन छोटा होता है, लेकिन वो फेनोमेना वो एक सर्टेन पॉइंट तक जाता है। उस सर्टेन पॉइंट के बाद जब हम फिर से एंगल ऑफ इंसिडेंस को और आगे बढ़ाते हैं, तो हम लोगों को दिखता है कि एंगल ऑफ इमर्जेंस भी बड़ा हो रहा है। ठीक है, और वो पर्टिकुलर पॉइंट, जिस पर्टिकुलर पॉइंट में ये हुआ है, दैट इज कॉल्ड टू बी द मिनिमम डेविएटेड पॉइंट। यानी ये जो है ये मिनिमम डेविएटेड पॉइंट है, यानी जहां पर डेविएशन जो है वो मिनिमम है। अब इस पॉइंट को ही हम लोगों को यहाँ पे समझने की जरूरत है। तो जब हम लोग ये वाली सिचुएशन लेकर आ जाते हैं, यहाँ पे देखो कि अगर तुम देखोगे तो ये जो एंगल ऑफ ये जो पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट कोइंसाइड कर रही है इक्वल डिस्टेंस पर, यानी इसकी डिस्टेंस और इसकी डिस्टेंस इक्वल है, जिसके कारण हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि एंगल आई और एंगल आई दोनों इक्वल, मतलब एंगल आई और एंगल ई दोनों इक्वल हो जाता है, और इन दोनों का कैलकुलेशन इस तरह से आता है। तो मिनिमम डेविएशन में
हम लोग एंगल ऑफ प्रिज्म को कैलकुलेट कर सकते हैं या एंगल ऑफ इंसिडेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ क्वेश्चन, इज इट क्लियर टू एवरीवन? क्या यहां तक समझ में आ रही है बात, क्या हम बोले? बिकॉज इट सर इज, एक बार और एक्सप्लेन। एक बार और फिर से बताते हैं। चलो ठीक है, हम स्टार्टिंग से फिर से एक बार देखते हैं। तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर रिफ्रैक्शन जब होती है, देखो जब हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज एक प्रिज्म लेते हैं, एक प्रिज्म लिए, एक प्रिज्म में अगर हम एक लाइट रे को एंटर करवाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम जा रही है तो लाइट रे बेंड करेगी, लाइट रे बेंड करके फिर वो डेंसर से रेयरर आ रही है तो वो और बेंड करेगी। ठीक है, अब यहां पर ये जो बेंडिंग है, ये बेंडिंग डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस के ऊपर। याद करो तुम लोग, अगर ध्यान से अगर याद करोगे, तुम लोगों को जब हम करवा रहे थे प्रैक्टिकल क्लास 8 में रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से, तो जो तुम लोगों को परपेंडिकुलर लिए थे उसके साथ जो तुम लोगों को एंगल ऑफ इंसिडेंस डालने के लिए बोले थे, वो तुम लोगों को बोले थे 40 से ऊपर लेना, 40 से ऊपर लेना लेकिन 60 तक ही जाना। ठीक है, 40 से ऊपर लेना लेकिन 60 तक ही जाना, अगर तुम लोगों को याद हो। और सबसे अच्छा फिगर बना था 50 टू 55 के बीच में, 50 टू 55 का जो एंगल था उसके ऊपर सबसे अच्छा फिगर बना था। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है उसके बेसिस पर हम लोगों का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन डिपेंड करता है। और एक बार अगर इस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के ऊपर देख लेते हैं तो वो फर्दर रिफ्रैक्शन को भी वो डिटरमाइन करवाता है। द सेम थिंग वी आर ऑब्जर्विंग ओवर हियर ऑल्सो। अगर हम लोग इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को देखते हैं तो कल हम लोगों ने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस और इस एंगल ऑफ इमर्जेंस को रिलेट किया था इस एंगल ऑफ डेविएशन, इस एंगल ऑफ प्रिज्म के साथ। तो हम लोगों ने एक फॉर्मूला यहाँ पर ये लेकर आए थे, ये वाली फॉर्मूला हम लोगों ने देखा था। तो इस वाले फॉर्मूला में हम लोगों ने देखा था कि एंगल आई प्लस एंगल ई इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल ऑफ डेविएशन, ये हम लोगों ने देखा था। लेकिन अगर इसको थोड़ा सा अगर हम चेंज करते हैं, क्या चेंज कर रहे हैं हम इसमें? अगर चेंज करते हैं एंगल आई प्लस एंगल ई माइनस एंगल ए इज इक्वल टू डेविएशन। अब यहां पर अगर समझो, अगर ऐसा सिचुएशन हो जाए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमर्जेंस इक्वल बन जाए, यानी ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाए, तो हम लोग उसको लिख सकते हैं एंगल आई प्लस एंगल आई माइनस एंगल ए इज इक्वल टू डेविएशन। तो ये दोनों का सम क्या हो जाएगा? 2 एंगल आई माइनस ए इज इक्वल टू एंगल ऑफ डेविएशन। Now, when this will happen, when this situation is going to happen, then this deviation is called to be as the minimum deviation. ये जब सिचुएशन होती है, ऐसा 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 होता है, तो ऐसा जब होता है तब इस डेविएशन को हम लोग बोलते हैं मिनिमम डेविएशन। अब इसी मिनिमम डेविएशन को हम लोगों को यहाँ पर फिगर में समझना है। तो कैसे हम लोग समझ सकते हैं फिगर में? तो देखो यहाँ पर एक सिंपल से इक्वेशन के रूप में इसको समझो। ठीक है, एक रिलेशन के बेसिस पर समझो। जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, जब हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, तुम लोगों को पता है ग्राफ में। जब हम लोग वहां से एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं तब हम लोग ये ऑब्जर्व करते हैं कि एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो घटता है। एंगल ऑफ डेविएशन जो होता है वो छोटा होता है, वो घट जाता है। ठीक है, ये एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है जो कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस को हम लोग इंक्रीज करेंगे। जब भी हम लोग एंगल ऑफ इंसिडेंस को इंक्रीज करेंगे तो हम लोग ये चीज ऑब्जर्व करेंगे। तो देखो वही चीज यहाँ पर भी दिखाया जा रहा है ग्राफ से, ये यहाँ पर आ गया। लेकिन ये जो फेनोमिना है ये एक पर्टिकुलर पॉइंट तक ही काम करेगी। ये वाला फेनोमिना देखो यहाँ पे जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, जैसे जैसे हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो हमको जो ये कोऑर्डिनेट मिलेगा, इस कोऑर्डिनेट में हमको ऑब्जर्व होगा कि हम जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस को बड़ा कर रहे हैं तो एंगल ऑफ डेविएशन मेरा छोटा हो रहा है। एंगल ऑफ डेविएशन मेरा छोटा हो रहा है। ये यहाँ से यहाँ पर और छोटा हो गया। अब यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर और छोटा हो गया, और यहाँ से देखते हैं तो इस पॉइंट पर और छोटा हो गया। लेकिन इस पॉइंट पर पहुंचने के बाद
then when we are again increasing the angle of incidence, जब हम लोग अब फिर angle of incidence को बढ़ाते हैं, sorry, just a minute, जब हम लोग यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस को फिर से बढ़ाते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर क्या ऑब्जर्व होता है, या फिर हम लोगों को यहाँ पर क्या मिलता है, हमको यहाँ पे मिलता है कि एंगल ऑफ डेविएशन अब बढ़ने लगा है। अब एंगल ऑफ डेविएशन जो है वो यहाँ पर बढ़ने लगा है। अगर हम इसको और थोड़ा सा बढ़ाएंगे, अगर हम एंगल ऑफ डेविएशन को अगर हम थोड़ा सा और इंक्रीज करवाएंगे, तो हमको यहाँ पर क्या दिखेगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को अगर और बढ़ाएंगे तो एंगल ऑफ डेविएशन और बढ़ता है। ठीक है, तो ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दिस पॉइंट गिव्स अस द मिनिमम डेविएशन। ये हम लोगों को मिनिमम डेविएशन देता है, यानी वो पर्टिकुलर पॉइंट जहां पर ये फेनोमिना आकर स्टेबल हो जाता है। ये फेनोमिना यानी ये एंगल ऑफ डेविएशन जो घटने का जो क्रम है, वो घटने का क्रम वहां पर बंद हो जाता है। अब हम लोग देखते हैं जैसे जैसे इसके आगे एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते हैं, एंगल ऑफ डेविएशन भी बढ़ते चले जाता है। ये पर्टिकुलर सा सिचुएशन या ये पर्टिकुलर सा कंडीशन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिलता है। इज इट ओके नाउ? इज इट ओके Yes, नाउ? sir. Okay, okay. And Khushi, you are not able to join. I'm doing the recording. I will provide it to you. Okay. Okay, sir. Okay, sir. Okay. Okay. So this was the situation which we have to understand for the minimum deviation. तो यहाँ पर हम लोग यही चीज देख रहे हैं, minimum deviation को समझ रहे हैं। So minimum deviation हम लोगों को हमेशा बताता है वो particular point जहां पर की deviation होना, मतलब डेविएशन और इंसिडेंट रे का जो रिलेशन है, वो रिलेशन किस तरह से बदल जाती है। यहाँ पर एक सिचुएशन देखो, एक सिचुएशन देखो जो हम लिखे हुए हैं, refracted ray become parallel to the base. This is a very important thing. यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग इसको पैरेलल लिए हैं बेस के, ये वाली पैरेलल हो गई है बेस में, यानी इस पॉइंट पर, यानी ये वाली जो हम लोगों की रिफ्रैक्शन की जो सिचुएशन दी हुई है, ये रिफ्रैक्शन में ये सिचुएशन हम लोगों का मिनिमम डेविएशन है, ये हम लोगों का मिनिमम डेविएशन है, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो अंदर के रिफ्रैक्टेड रे है वो पैरेलल हो गई है बेस के साथ वो पैरेलल हो चुकी है। दिस मींस दैट दिस इज द मिनिमम डेविएशन वेयर वी हैव द फॉर्मूला इज दिस। तो यहाँ पर तुम लोगों को न्यूमेरिकल आ सकता है, से एज फॉर एग्जांपल यू आर हैविंग अ प्रिज्म ऑफ एंगल 42 डिग्री, ओके, एंगल ऑफ 42 डिग्री, where the minimum you have to find the minimum deviation where the angle of incidence is given 38 degree. सपोज मान लो तुमको दिया गया है कि एक प्रिज्म है जिसके कि प्रिज्म एंगल ऑफ प्रिज्म दिया हुआ है 42 डिग्री, ठीक है, और तुम लोगों को दिया हुआ है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो 38 डिग्री है। तुमको पूछा गया है कि व्हाट वुड बी द मिनिमम डेविएशन, वहां पे मिनिमम डेविएशन कितना होगा, तो हम लोग इस फॉर्मूला से उसको कैलकुलेट करेंगे। द मिनिमम डेविएशन विल बी इक्वल्स टू व्हाट इज 2 angle of incidence, so that would be 2 into 38 minus angle of prism, so that is 42. So over here if you will go for this one, so it is coming to 76 minus 42, so if you will get for this one it is 34, so 34 will be the minimum deviation, so 34 जो होगी वो तुम लोगों की वहां पर minimum deviation होगी। Is it okay? Yes, sir. Okay, okay, okay. So I hope everyone had understood this thing. Is it clear to everyone? Yes, sir. Yes. Okay. Well, then it's very good. So you all please just revise these things. Okay. One more thing. The network is very much poor over here also. Then should I drop the class today over here? Then tomorrow I will continue from this particular point only. Okay, because it is continuously showing blank. Is it okay? Should I drop the class today and tomorrow could I go for it? Yes. Yes. Okay, okay then. So I will end up today only here only, and tomorrow I will explain again from this particular point. Okay. So I will see you tomorrow. And thank you for now. Bye everyone.